Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Shahid Akram Javed, Subject Specialist Chemistry at Divisional Public School and College Sahiwal. I welcome you to DPS online classes. Here I will teach you subject of chemistry, FSC, class first year. Let me start our today's topic. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are going through chapter number 1 about basic concepts. We have learned so far 3 lessons. Today we are going through lesson number 4. Today's topic is analysis of a compound. After the lesson, we will be able to explain what is qualitative and quantitative analysis. By qualitative and quantitative analysis, we will determine some elements and their ratios, and finally we will form its chemical formula. Chemical formula have 2 basic types, empirical and molecular formula. We will be able to explain what are these empirical and molecular formulas. By knowing the percentage composition of element in a compound, we will know about how the percentage composition of these elements are determined. Let me start. Before going to details of chemical formula, let me see what is analysis. Analysis means the given sample, either it may be a compound or some mixture. We will follow some steps to analyze the materials present in that sample. We can define compound and elemental analysis is a process in which a given sample of some materials, like it may be soil, some waste or drinking water, some minerals or any chemical compound, it will be analyzed for its elements and compounds. Analysis composed of 2 different steps: qualitative analysis and quantitative analysis. मतलब analysis किसी भी कंपाउंड का करने के लिए उसको 2 तरह से देखा जाएगा. उस कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स या मटेरियल्स कौन से हैं, और दूसरा उसमें वो एलिमेंट्स या कंपाउंड कितनी अमाउंट या कितनी रेशो में मौजूद है. Let me see the first one, qualitative analysis. In qualitative chemical analysis, we deal with the identification of elements or grouping of elements present in a sample. मतलब qualitative analysis में हमें उस given compound के अंदर मौजूद डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलेगी, जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये डिटरमिन करेगा कि ये एलिमेंट्स या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स कितनी अमाउंट्स में हैं. सो इन क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस वी डील विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट और परसेंटेज ऑफ वन और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सैंपल. After knowing their elements and their percentage, we will form its chemical formula. ये chemical formula क्या चीज है? जैसे कि हम किसी भी चीज को उसका नाम देते हैं, बिल्कुल इसी तरह एलिमेंट या केमिकल कंपाउंड का एक केमिकल फॉर्मूला होता है जो उसकी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है. It is the representation of a chemical name of a substance. किस तरह? In terms of symbols of elements, ions and radicals. That is called chemical formula. For example, chemical formula of water is H2O and chemical formula of sodium chloride is NaCl. Chemical formula की 2 different types हैं. Number 1 is empirical formula
and number 2 is molecular formula. Let me see the details of this empirical formula and molecular formula. Empirical formula is the simplest formula that gives the small whole number ratio between the atoms of different elements present in a compound. मतलब कि empirical formula हमें उस compound के अंदर मौजूद डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान एटम्स की सिंपलेस्ट रेशियो के बारे में बताएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कंपाउंड AXBY मौजूद है। अब इस कंपाउंड के अंदर A एलिमेंट के X नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं और B एलिमेंट के Y नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं। मसलन empirical formula of glucose, a well-known organic compound having formula C6H12O6, मतलब इसमें कार्बन के 6 एटम हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं। अगर हम इसकी सिंपलेस्ट रेशो लें तो ये 1:2:1 बनता है। ये भी हो सकता है इसी ग्लूकोज की डिफरेंट रेशो मिले, लेकिन जो सिंपलेस्ट रेशो है वो CH2O है। इसी तरह बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला CH होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें उस कंपाउंड में मौजूद तमाम एटम्स के बारे में, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताएगा, या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं ये हमें उस कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की एक्चुअल रेशियो के बारे में बताएगा। सो वी कैन डिफाइन द फॉर्मूला ऑफ ए सब्सटेंस व्हिच इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल मॉलिक्यूल, इट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इट गिव्स अस अ कंप्लीट होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। इट गिव्स द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल और ऑफ ए कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर हमने एग्जाम्पल देखी ग्लूकोज की। ग्लूकोज का सिंपलेस्ट फार्मूला CH2O है, जबकि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 होगा। इसी तरह बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है, जबकि इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH है। अगर हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करें, केमिकल फार्मूला की 2 टाइप्स है, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला और एक एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें उस कंपाउंड में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में इंडिकेट करेगा, जबकि एम्पिरिकल फार्मूला इंडिकेट्स ओनली द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन अ मॉलिक्यूल। ये तो हो गया केमिकल फार्मूला और इसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में। अब इस कंपाउंड जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं, इसके अंदर मौजूद डिफरेंट एलिमेंट्स को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। उसके लिए हमें उस कंपाउंड को एनालाइज करना पड़ेगा। जैसा कि हम लेसन के शुरू में देख चुके हैं, कंपाउंड को जब एनालाइज करेंगे तो 2 लिहाज से इसको एनालाइज किया जाएगा। एक क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिससे हमें उस कंपाउंड के अंदर मौजूद एलिमेंट्स के बारे में पता चलेगा, और दूसरा हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे, जिससे हमें उस कंपाउंड के अंदर मौजूद उस एलिमेंट का मास या उस एलिमेंट की मास परसेंटेज ऑफ मास मिल जाए। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट से क्या मुराद है? द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ द कंपाउंड। मीन कि अगर हमारे पास एक कंपाउंड के 100 ग्राम मौजूद हैं, तो उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स की ग्राम्स में अमाउंट कितनी होगी, इसको हम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स कहेंगे। मसलन हमारे पास एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। उसमें देखा जाएगा कि कार्बन की परसेंटेज कितनी है, नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है, ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की, या और जो अवेलेबल एलिमेंट उस कंपाउंड के अंदर मौजूद हैं। एक तो
एनालाइज कर लिया जाएगा कि उसके अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं, और दूसरा उसकी परसेंटेज फाइंड आउट की जाएगी। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड एज मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड ओवर फॉर्मूला मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाई 100। यानी कि हमारे पास उस कंपाउंड का टोटल मास रिक्वायर्ड होगा और उस कंपाउंड के अंदर उस एलिमेंट का मास कितना है, उस एलिमेंट के मास को टोटल मास ऑफ द कंपाउंड से डिवाइड कर दें और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट मिल जाएगी। अब इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स की परसेंटेज निकालते हैं। हमारे पास है एग्जांपल नंबर 2। स्टेटमेंट है 8.657 grams of a compound were decomposed into its elements and gave 5.217 grams of carbon, 0.962 grams of hydrogen, 2.478 grams of oxygen. Calculate the percentage composition of the compound under study. हमारे पास कंपाउंड का गिवन मास मौजूद है और उस कंपाउंड में मौजूद डिफरेंट एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मास गिवन है। हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? लेट मी सॉल्व। सबसे पहला काम, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त हमें उसका डाटा जो इंटरप्रेट करना होता है। सबसे पहले हम डाटा को लिख लें, फिर उसके बाद हम इसमें जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे और फिर उस फॉर्मूला के अंदर गिवन डाटा में से वैल्यूज पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे और फिर फाइनली हमारे पास उस डाटा का रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। डाटा क्या है? हमारे पास मास ऑफ कंपाउंड है 8.657 ग्राम्स जो कि गिवन है। मास ऑफ कार्बन हमारे पास है 5.217 ग्राम्स और हाइड्रोजन का मास है 0.962 ग्राम्स। ऑक्सीजन का मास 0.962 ग्राम्स। आई थिंक यहां पर ऑक्सीजन का मास 2.478 ग्राम्स है। यहां पर शायद टाइपिंग मिस्टेक से गलती से लिखा गया है, ये 2.478 ग्राम्स है। हमने परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन फाइंड करनी है, उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड ओवर फॉर्मूला मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाई 100। सो इस फॉर्मूला को यूज करते हुए 1 बाई 1 हम डिफरेंट एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालते हैं। सबसे पहले हम परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला को हम रीअरेंज करते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन इज मास ऑफ कार्बन ओवर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाई 100। वैल्यूज पुट की, कार्बन का मास 5.217 ग्राम्स और गिवन कंपाउंड का मास 8.657 ग्राम्स मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये कार्बन की परसेंटेज आ गई 60.28%। नाउ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, फार्मूला को रीअरेंज किया, मास ऑफ हाइड्रोजन ओवर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाई 100। वैल्यूज पुट करें, हाइड्रोजन का मास 0.926 ग्राम्स, गिवन मास ऑफ कंपाउंड इज 8.657 ग्राम्स मल्टीप्लाई बाई 100। कैलकुलेट किया तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ गई 11.11%। तीसरा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन ओवर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाई 100। वैल्यूज पुट करें, 2.478 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई मास ऑफ कंपाउंड 8.657 ग्राम्स मल्टीप्लाई बाई 100। तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ गई 28.62%। तो ओवरऑल परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स निकालने के बाद फाइनल हमारा रिजल्ट क्या बना कि अगर हमारे पास 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड
होता, अभी तो हमारे पास इसका मास 8.657 ग्राम है, तो इसके अंदर इसकी परसेंटेज इतनी आ रही है। लेकिन अगर कंपाउंड 100 ग्राम होता तो इसके अंदर कार्बन 60.28 ग्राम होता और हाइड्रोजन 11.11 ग्राम और ऑक्सीजन 28.62 ग्राम। एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। आइए अब उसको हम सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द 4 इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स। फार्मर्स अपने फील्ड्स में डिफरेंट फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, किस लिहाज से कि प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम रिक्वायर्ड होती है। यहां पर 4 वेल नोन फर्टिलाइजर्स गिवन है। नंबर 1 इज अमोनिया, नंबर 2 इज यूरिया, नंबर 3 इज अमोनियम सल्फेट एंड नंबर 4 इज अमोनियम नाइट्रेट। मार्केट में ये डिफरेंट ट्रेड नेम्स के साथ अवेलेबल है। हम यहाँ पर इनके केमिकल नेम्स यूज कर रहे हैं। हमने इसमें इन चारों फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी। लेट वी सॉल्व। द फर्स्ट वन इज अमोनिया। हम सेम वही फार्मूला यूज करेंगे कि पहले डाटा फिर फार्मूला रिप्रेजेंटेशन, फार्मूला में वैल्यूज को पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास गिवन फर्टिलाइजर है अमोनिया, आइदर गैसेस फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो। गैसेस फॉर्म में अमोनिया को फर्टिलाइजर के तौर पर यूज नहीं किया जाता, अलबत्ता लिक्विड अमोनिया को एज ए फर्टिलाइजर के तौर पर यूज करते हैं। मोलर मास ऑफ अमोनिया कैन बी कैलकुलेटेड एज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 ग्राम, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, टोटल 3 एटम्स हैं, तो इसका मास बन गया 3 ग्राम्स। टोटल सबको ऐड कर लिया, ये बन गया 17 ग्राम्स पर मोल। अमोनिया के अंदर क्योंकि एक नाइट्रोजन है, तो इसलिए इस कंपाउंड के अंदर एक नाइट्रोजन का मास यूज होगा, विच इज 14 ग्राम। हाइड्रोजन जो कि इसमें 3 है, तो हाइड्रोजन का मास हो गया 3 ग्राम्स। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हमने फाइंड करनी है, फॉर्मूला लगाएं। क्या है? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ द एलिमेंट इन ए कंपाउंड ओवर फॉर्मूला मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। So using this formula, we can calculate percentage of nitrogen as mass of nitrogen over mass of ammonia multiplied by 100. नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम, मास ऑफ अमोनिया इज 17 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 100, कैलकुलेट किया 82.35% नाइट्रोजन अमोनिया में मौजूद है। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, NH2CONH2 वेल नोन फर्टिलाइजर। फार्मर सबसे ज्यादा जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं दैट इज यूरिया। केमिकल नेम ऑफ यूरिया इज कार्बेमाइड। आइए इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज को फाइंड आउट करते हैं। पहले डाटा रिप्रेजेंट करें। मोलर मास ऑफ यूरिया कैन बी कैलकुलेटेड एज, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, 2 हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 एंड एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, 2 हाइड्रोजन है, एटॉमिक मास 2, सबको ऐड किया, ये बन गया 16 ग्राम्स पर मोल। अब इस यूरिया के अंदर नाइट्रोजन 2 है, इसलिए अगर हम इन दोनों नाइट्रोजन के एटॉमिक मास को ऐड करें, ये बन गया 28 ग्राम्स। टोटल मास ऑफ यूरिया 60 ग्राम बनता है और नाइट्रोजन का मास है 28 ग्राम। हमने परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करनी है, फार्मूला में इसकी वैल्यूज पुट करें। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज मास ऑफ नाइट्रोजन ओवर मास ऑफ अमोनिया मल्टीप्लाई बाय 100। मास ऑफ नाइट्रोजन इज 28 grams, मास ऑफ यूरिया इज 60 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 100, कैलकुलेट किया 46.67% बन गया। ये हमने 2 पार्ट्स को सॉल्व किया है। इसके 2 पार्ट्स स्टूडेंट्स आप खुद ट्राई कीजिएगा। इस टॉपिक को
फार्मूला को यूज करना अच्छी तरह सीख लें। उसके बाद इन दोनों पार्ट्स में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन को कैलकुलेट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का बी पार्ट है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स। ये भी वेल नोन फर्टिलाइजर्स हैं। द फर्स्ट वन इज अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, नंबर 2 इज डाइअमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट commonly known as DAP, और नंबर 3 इज अमोनियम फॉस्फेट। इन फर्टिलाइजर्स में हमने नाइट्रोजन और फास्फोरस की परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। बिल्कुल वही फॉर्मूला यूज होगा। वहां पर हमने सिर्फ नाइट्रोजन की परसेंटेज निकाली थी, यहां पर हम नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों एलिमेंट की परसेंटेज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? लेट मी सॉल्व। पहला है अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। सबसे पहले इसका मोलर मास कैलकुलेट करें। मोलर मास ऑफ अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, टोटल 4 हाइड्रोजन एटम है, 4, आगे इन 2 हाइड्रोजन का मास 2, फास्फोरस का मास 31, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, टोटल 4 ऑक्सीजन है, मल्टीप्लाई किया और सबको ऐड किया तो ये बन गया 115 ग्राम्स पर मोल। अब इसमें जो कि एक नाइट्रोजन है तो हमने मास ऑफ नाइट्रोजन 14 ग्राम यूज करेंगे, और इसमें जो कि एक फास्फोरस है तो उसका एटॉमिक मास 31 ग्राम होगा। हमने नाइट्रोजन और फास्फोरस की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। फार्मूला अप्लाई करें। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ नाइट्रोजन ओवर मास ऑफ अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट मल्टीप्लाई बाय 100। नाइट्रोजन का मास 14, ओवरऑल फर्टिलाइजर का मास 115 मल्टीप्लाई बाय 100, सॉल्व किया तो ये आ गया 12.17%, यानी कि इस फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन की परसेंटेज 12.17 है। सिमिलरली फास्फोरस की परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। कैसे? फार्मूला वही है, जिस यहां पर हमने नाइट्रोजन की जगह पर फास्फोरस का मास लगाएंगे और यहां पर एज सच मास ऑफ फर्टिलाइजर वैसे का वैसा ही आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। कैसे? एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस जो इस कंपाउंड में, जो कि एक फास्फोरस यूज हुई है, उसका मास है 31, और फार्मूला मास ऑफ द फर्टिलाइजर इज 115 मल्टीप्लाई बाय 100। कैलकुलेट किया तो परसेंटेज ऑफ फास्फोरस आ गई 26.96%। दूसरा पार्ट जिसमें फर्टिलाइजर है डाई अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। अब इसके अंदर फास्फोरस तो एक है लेकिन नाइट्रोजन 2 होंगे, तो इसलिए इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज थोड़ी डिफरेंट होगी। मोलर मास ऑफ डाई अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, बिल्कुल इसी तरह एटॉमिक मासेस को इंडिविजुअल एलिमेंट्स के ऐड करें, जिसका मोलर मास आ गया 132 ग्राम्स पर मोल। इसमें नाइट्रोजन जो कि 2 है, 14 मल्टीप्लाई बाय 2 28 ग्राम्स, और फास्फोरस का मास 31 ग्राम्स। हमने यहां पर नाइट्रोजन और फास्फोरस की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, उसके लिए हम फॉर्मूला वही यूज करेंगे। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज मास ऑफ नाइट्रोजन ओवर मास ऑफ डाइअमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, जो कि 132 ग्राम्स, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। मास ऑफ नाइट्रोजन इज 28 ग्राम्स, फॉर्मूला मास ऑफ फर्टिलाइजर इज 132 ग्राम्स, मल्टीप्लाई बाय 100। ये परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन डाइअमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट में 21.21% है। नाउ कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ फास्फोरस by using mass of phosphorus over mass of diammonium hydrogen phosphate। फास्फोरस का मास 31 है और
फार्मूला मास ऑफ द फर्टिलाइजर इज 132 है, मल्टीप्लाई बाई 100, ये आंसर आ गया 23.42%। इस तरह किसी भी फर्टिलाइजर में हम गिवन एलिमेंट्स की परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरे पार्ट को स्टूडेंट्स आप खुद ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल इसी तरह नाइट्रोजन और फास्फोरस की आपने परसेंटेज निकालनी है। एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है जिसमें परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, इट्स स्टेटमेंट इज ग्लूकोज, its formula is C6H12O6 is the most important nutrient in the cell for generating chemical potential energy। ग्लूकोज हमारी बॉडी में एक एनर्जी सोर्स के तौर पर काम करता है। ग्लूकोज की कंबस्शन होती है तो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस ग्लूकोज में हमने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज को डिटरमिन करना है। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ ईच एलिमेंट इन ग्लूकोज। इस क्वेश्चन का एक दूसरा पार्ट भी है, डिटरमिन द नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स इन 10.5 ग्राम्स ऑफ द सैंपल। स्टेटमेंट को मैंने अंडरलाइन किया है कि एक्चुअली ये थोड़ी सी कैलकुलेशन में इन्वॉल्व होगा मोल और एवोगैड्रो का कॉन्सेप्ट, वो हमारा नेक्स्ट लेसन है। अभी हम उसकी तरफ नहीं जा रहे, अभी हम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स को डिटरमिन कर रहे हैं। एनीहाउ इस न्यूमेरिकल कैंप पे मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, लेकिन इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मोल वाले आर्टिकल से मिलेगी। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डाटा लिखें। हमारे पास मास ऑफ द सैंपल 10.5 ग्राम्स मौजूद है। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, कार्बन का एटॉमिक मास 12 into 6, 12 एटॉमिक मास ऑफ कार्बन है, 6 कार्बन एटम्स हैं। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, टोटल 12 हाइड्रोजन एटम है, प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, टोटल 6 ऑक्सीजन एटम है। सो मास ऑफ कार्बन इज 12, 72, हाइड्रोजन इज 12 एंड ऑक्सीजन इज 96। टोटल इसका मास बन गया 180 ग्राम्स पर मोल। ये ग्लूकोज का फार्मूला मास है, ये हम यूज करेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को निकालने के लिए। जबकि ये वाला जो मास गिवन है ये भी हम यूज नहीं करेंगे, ये एक्चुअली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स को डिटरमिन करने के लिए यूज होगा, ताकि जब हम इसके मोल्स निकालेंगे। मास परसेंट ऑफ ईच एलिमेंट, यानी कि हमने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज ऑफ मास निकालनी है। फॉर्मूला क्या होगा? सेम एज सच पहले की तरह। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय मास ऑफ द एलिमेंट इन अ कंपाउंड ओवर फॉर्मूला मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। पहले हम कार्बन की परसेंटेज निकालते हैं। इस कंपाउंड के अंदर कार्बन जो कि 6 एटम है, जिसका मास 72 ग्राम्स बनता है, तो यहां पर हम मास ऑफ कार्बन 72 ग्राम्स पुट करेंगे और टोटल ग्लूकोज का मास ऑफ ग्लूकोज 180 ग्राम्स पुट करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 100 कैलकुलेट किया, ये आ गया 40%। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, यहां पर जो कि 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं जिसका मास 12 ग्राम्स बन रहा है, तो यहां पर हम हाइड्रोजन 12 ग्राम्स पुट करेंगे और मास ऑफ ग्लूकोज 180 ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 100 6.66% आ गया। तीसरा एलिमेंट ग्लूकोज में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज हम निकाल सकते हैं बाय टेकिंग इट्स मास इन कंपाउंड विच इज 96 ग्राम्स एंड टोटल मास ऑफ ग्लूकोज इज 180 ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 53.33%। यहां तक हमारे इस क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व हो जाता है, परसेंटेज मास ऑफ ईच एलिमेंट। लेकिन जो दूसरा पार्ट है, जिसका कि मैंने पहले बताया, ये मोल वाले आर्टिकल से रिलेटेड है। अभी मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, लेकिन आपको इसकी डिटेल, इसकी कॉम्प्रिहेंशन आपको मोल वाले टॉपिक में, उस लेसन में हम इसको स्टडी करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे?
इसके लिए हमें जो गिवन मास है वहां से हम उसके हर एलिमेंट के कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम फाइंड करने हैं। हमें इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सैंपल ऑफ ग्लूकोज, स्टार्ट में मैंने बताया था कि मास ऑफ द कंपाउंड जो गिवन है वो है 10.5 ग्राम्स और मोलर मास हमने निकाला था 180 ग्राम्स पर मोल। सो फार्मूला है मास और मोलर मास, ये उस सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए जा सकते हैं। कैलकुलेट करने पर ये आ गए 0.0583 मोल्स। अब इस एक ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन एटम्स हैं, यानी कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज कंटेन 6 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स। क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम है तो एक मोल में कार्बन के 6 मोल्स बनेंगे, हाइड्रोजन के 12 मोल्स बनेंगे, ऑक्सीजन के 6 मोल्स बनेंगे। तो गिवन मोल्स में, एक मोल में तो कार्बन के 6 मोल्स बन रहे हैं, इतने मोल्स में कार्बन के कितने मोल्स बनेंगे इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 0.0583 मोल्स ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स। एक मोल में 6 थे और 0.0583 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गए हमारे पास 0.3498 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स। अब मोल्स को हम एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। मोल्स हमारे पास है 0.3498 और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू है 6.03 इंटू 10⁻23। कैलकुलेट किया तो ये आ गया 2.105 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स। नाउ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी हम इसी तरह कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें। एक मोल ऑफ ग्लूकोज में हाइड्रोजन के 12 मोल्स हैं और गिवन मोल्स में हाइड्रोजन के मोल्स कितने निकलेंगे, 12 को हम उस मोल से मल्टीप्लाई कर दें, ये आगे 0.6996 मोल्स। इन मोल्स को आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकल आएंगे। सो 0.6996 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर 6.0233 इंटू 10⁻23। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू मिस्टेकनली डिफरेंट टाइप हुई है, ये है 6.022 इंटू 10⁻23। मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4.211 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। नाउ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। एक मोल ऑफ ग्लूकोज में ऑक्सीजन के 6 मोल्स मौजूद हैं। गिवन अमाउंट ऑफ मोल्स में कितने मोल्स होंगे ऑक्सीजन के, इसको आप उसे मल्टीप्लाई कर दें। 6 इंटू 0.0583, ये आ गया 0.3498 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 2.105 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। जैसा कि यहाँ पर कार्बन के एटम्स, क्योंकि एक मोल ऑफ ग्लूकोज में कार्बन और ऑक्सीजन के एटम बराबर हैं तो इसलिए ये आंसर भी दोनों बराबर है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। एक दफा हम इस पूरे टॉपिक को समराइज करते हैं। हमने देखा किसी भी कंपाउंड को उसके अंदर मौजूद कंपोजिशन फाइंड करने के लिए हमें इसको एनालाइज करना पड़ता है। एनालिसिस ऑफ ए कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 2 steps. The first one is qualitative, the second one is quantitative. क्वालिटेटिव एनालिसिस से उस कंपाउंड के अंदर मौजूद डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में पता चलता है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में उस एलिमेंट्स की मास या उसकी परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है। उस कंपाउंड में जो मौजूद एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को परसेंटेज की फॉर्म में कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज फार्मूला या मास परसेंट यूज किया जाता है। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए हमने फार्मूला के बाद कुछ न्यूमेरिकल्स को यूज करते हुए अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस है वो की है। आप भी इसको बार बार वीडियो को रिवाइंड करके इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाए। जब हमारे पास उस कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की अमाउंट या उसकी परसेंटेज निकल आती है तो फिर हम उसका
केमिकल फार्मूला डेवलप करते हैं। केमिकल फार्मूला कैसे डेवलप किया जाता है ये हम अपने नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। केमिकल फार्मूलों को आगे एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट किया जाता है, उसकी हम नेक्स्ट लेसन में डिटेल्स स्टडी करेंगे। केमिकल फार्मूला एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला की फॉर्म में निकाला जाता है और फिर आगे उसका फाइनल फार्मूला निकाला जाता है। इसके अलावा हमने इस चैप्टर में, इस आर्टिकल में डिटेल में स्टडी किया कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड कैसे निकाली जाती है, उसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के साथ अच्छी तरह हमने इसकी प्रैक्टिस जो की है। ये तो था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक जो वो अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो इस टॉपिक को बार बार रीड करें, बुक को कंसल्ट करें, वीडियो को बार बार रिमाइंड करें ताकि आपको अच्छी तरह टॉपिक की समझ आ जाए। खासकर एग्जांपल्स और जो सॉल्व न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है उसको बार बार प्रैक्टिस करें। जब आपको अच्छी तरह इस टॉपिक की समझ आ जाए तो आप इस असाइनमेंट को जब सॉल्व कीजिएगा। असाइनमेंट के क्वेश्चंस मैं रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। आई होप यू डू सो। हमने इसको डिटेल में स्टडी किया है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई एनालिसिस ऑफ ए कंपाउंड इज डन। एक कंपाउंड का एनालिसिस करना क्यों जरूरी है। यकीनन आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन 3 इज हाउ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड कैन बी डिटरमिन्ड। हमने फार्मूलाज यूज किए थे, किस तरह निकाल सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन 4, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स। मैंने क्वेश्चन नंबर 14 के दो पार्ट जब वो छोड़े थे, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट, वहां पे मैंने आपको कहा था कि आप इन दो पार्ट्स को सॉल्व कीजिएगा। इसको हम आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, इसको आप एज असाइनमेंट के तौर पर सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इन अमोनियम फॉस्फेट। अमोनियम फॉस्फेट में नाइट्रोजन और फास्फोरस की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 14 के बी पार्ट में मैंने दो पार्ट्स को सॉल्व किया था। ये तीसरा पार्ट मैंने आपके लिए असाइनमेंट के तौर पर जब छोड़ा है। यकीनन आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आई होप कि आपको आज का टॉपिक जो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को पुट कर सकते हैं। बाद में इसका आंसर जो आपको मिल जाएगा, या ओवरऑल टॉपिक को बार बार रिवाइंड करके इसको दोबारा से स्टडी करें और प्रैक्टिस करें। यकीनन आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आज का लेसन हम खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।